thoughts are like seeds, and I live on thoughts. We are not certain which thought is going to bloom and turn into a massive concept, or it will fizzle out into a insignificant idea. Fortunate for me, my teeny weeny thought, a small thought, turned into a vast ocean. Every drop of water is precious, and I am here to share my experiences in saving 10 million liters of water single-handedly going down the drain. To begin with, let us try to understand water. हमने आज तक कभी तवज्जो दी ही नहीं. पानी क्या है? Water, to understand water is to understand prana. Tall claim. To understand water is to understand Paramatma. अगर कोई नास्तिक, कोई atheist, if he jumps into the mysteries of water, he will turn into a believer. So let us begin with the word water. आखिर ये water है क्या? स्कूल में था, or when we were in the schools and colleges, we were told that water is H2O. Is water just hydrogen and oxygen? It's just H2O. एक हाई कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के एडवोकेट से पूछा गया, what is Ramayana? He said, Ramayana is a property dispute. Is Ramayana property dispute? What is Mahabharata? He said, family dispute. So water is just H2O. I asked my teachers, they did not have answer. I asked my parents, they did not have answer. Asked my friends, nobody had answer. Because nobody had thought of it, except one person. He is the Japanese, and his name is Masaru Emoto. When I read his book, I learnt a lot from Masaru's book. His title was Hidden Messages in Water, in which he claims that what we feel, water feels. What we record, water can record. In layman's term, water can hear also, water can talk also. Now, how did he prove it? How did he prove all these things? He had to prove it scientifically so that younger generation and scientists also, they can take notice of it. So he took 2 glasses of water, kept one glass to the right, kept another glass to the left. To the glass which was to the right, filled with water, he kept on giving positive messages. The glass to the left, he kept on giving negative messages, love and hatred. Positive messages to the right, negative messages to the left. Then after 1 month, continuously, every morning giving these messages, he put both the glasses in the fridge and turned the water into crystals and took photographs.
जो ग्लास राइट पर था, द वन दैट वाज टू द राइट एंड वन दैट गॉट द पॉजिटिव मैसेजेस, उसके क्रिस्टल के जो फोटोग्राफ्स आए, दे वर लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स। एंड द ग्लास टू द राइट, उसके पानी के क्रिस्टल्स के जो फोटोग्राफ आए, ऐसा था जैसे गटर का पानी। वो मसारू डिडंट स्टॉप हियर। Thousands of experiments he made from different types of water. उसने पहले तो नल का पानी लिया था, फिर उसने नहर का पानी लिया, वाटरफॉल का पानी लिया, कुएं का पानी लिया, वही एक्सपेरिमेंट वही रिजल्ट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? यही नहीं, उसने एक और बड़ा खूबसूरत प्रयोग किया। वही एक ग्लास पानी से भरा हुआ राइट पर, एक ग्लास पानी से भरा हुआ लेफ्ट पर, एक को उसने इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दिया और दूसरे को वेस्टर्न रॉक म्यूजिक लगा दिया। आफ्टर 1 month द रिजल्ट वॉज द सेम। इमेजिन कि आवाजें जो है हम जो सुनते हैं, कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पानी भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट के बाद उसने इसी तरह के कई और प्रयोग किए। दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु वांट टू गो इनटू डिटेल, प्लीज रेफर मसारू इमोटो ऑन नेट। मैं आई एम टॉकिंग इन ए जनरल, कॉमन आदमी की जबान में बात कर रहा हूँ कि पानी बात कर सकता है, पानी सुन सकता है, पानी बोल सकता है। सिर्फ हम में ये समझने की, बोलने की, उनकी आवाज़ पकड़ने की हम में वो क्षमता होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोमाटोस पीपल, जो लोग 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से कोमा में पड़े हुए हैं, they are like half dead people. Can they talk? They cannot talk. But there is a certain way one doctor found that he can talk to the comatose people. I am just talking in relation to how water picks up our messages. उसने comatose patient के कान में कहा, Can you hear me? If you hear me, just shake your toe. पाँव का अंगूठा जरा हिला देना या पाँव थोड़ा सा हिला देना। Immediately उसका पाँव शेक हुआ। Now he asked second question. उसकी स्थिति जो थी वो आधा जो था इस दुनिया में था, आधा उस दुनिया में, कोमाटोस। उससे पूछा कि भैया आर यू हैप्पी? ही सेड नो। उससे पूछा, पैर से ही जवाब दे रहा है। उससे पूछा डू यू वांट टू कम बैक? उसने कहा नो, बिकॉज ही हैड सीन द मिरेकल ऑफ हेवन। वहां आकाश में, स्वर्ग में क्या हो रहा है, ही सॉ द हेवन एंड he decided he does not want to come back. I am putting out the point that you can talk to comatose, you can talk to water, water will be replying to you. अगर खुश है तो रिजल्ट तुम्हें अच्छा देगा, अगर नहीं खुश है। ये तो बात हुई हमारी जबानी, हमारी डायलॉग्स की। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं आप लोगों तक और आपको सब सुनाई देता है। लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट लिखा तो किसी को सुनाई नहीं देगा अनलेस कि आप पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो एक कदम और आगे बढ़ा और उसने एक ग्लास पर एक स्लिप चिपका दी जिस पर उसने लिखा लव। दूसरे ग्लास पर उसने दूसरी ये कागज की चिप चिपका दी, उस पर लिख दिया हेट।
love, hate, positive, negative, written words, no talking. After 1 month he took the photograph, the result was the same. तो पानी क्या पढ़ लेता है शब्द? हमारी जबान में बात करते हैं, क्या पानी सुन लेता है हमारे शब्द? और हम कहते हैं पानी इज जस्ट H2O. तो अगेन कमिंग बैक टू द टीनी वीनी क्वेश्चन जो डॉक्टर मसारू के भीतर पैदा हुआ कि पानी क्या है, और उसने बरगद बना के रख दिया हम लोगों के सामने। वैसे ही सिमिलरली मेरी जिंदगी में भी यही हुआ। जब मुझे पता चला, और ये कैसे पता चला कि पानी जो है, हर एक बूंद पानी की अनमोल है, बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड ईयर्स स्पेंट ऑन द पेवमेंट। फुटपाथ पर जिंदगी शुरू करना और पानी की एक एक बकेट के लिए युद्ध करना। आई रिमेंबर माई मदर, शी यूज्ड टू स्टैंड, 4 बजे खड़ी हो जाती थी पानी की कतार में, जो पब्लिक टैप जहाँ लोग सारे एरिया के वहाँ इकट्ठे होते थे, बड़ी लंबी कतार। आजकल जो बैंक में कतारें देख रहे हो ना, वैसी कतारें लगती थी, और एक एक बकेट पानी के लिए युद्ध हो जाते थे। ये सारी जंग मैंने देखी थी, ये सब पीछे छूट गया, बाकी सब पीछे छूट गया। ये पानी की जंग मेरे भीतर चलती रही कि कितना अनमोल है। और कहीं किसी दोस्त के घर गया तो जैसे बैठा हूँ यहाँ हॉल के अंदर, दोस्त के घर के हॉल में, कहीं किचन में या कहीं बाथरूम में पानी टपक रहा है, एक एक बूंद ठपाक ठपाक, किसी को कोई असर नहीं होता, लेकिन मेरे माथे पर तो हथौड़े पड़ते होते। और मैं कहता हूँ भैया यार इसको तो रिपेयर करवा ले, नल को ठीक करवा ले। वो कहता हो जाएगा हो जाएगा। 6 महीने के बाद वापस गया उसी दोस्त से मिलने, उसी के घर के अंदर देखा वही नल टपक रहा है। मैंने वही सवाल दोहराया कि भैया तो क्यों इसको रिपेयर नहीं करवा लेता? तो उसने 2 बातें बताई कि भाई छोटे काम के लिए कोई प्लम्बर आता वाता नहीं, मामूली है, ड्रिपिंग है तो कौन आएगा। और दूसरी बात उसने ये कही कि आबिद भाई चंद बूंदे ही तो जा रही है ना, कोई गंगा तो नहीं बह रही ने, क्यों अपना माथा फोड़ रहे हो? जब आते हो तो बूंद की बातें लेके बैठ जाते हो। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं कुछ दिनों बाद एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में पानी पर एक लेख था, और उस लेख में उसने दिया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, जाया होती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। 1000 लीटर ऐसा धमाका हुआ भीतर, और मुझे जवाब मिल गया। वो लोग जो मुझसे कह रहे थे कि भाई चंद बूंदे जा रही हैं ना, गंगा तो नहीं बह रही है, क्यों माथा फोड़ रहे हो, उनको बताने के लिए, उनको कहने के लिए मुझे जवाब मिल गया, और साथ में आइडिया भी आ गया। एक टिनी विनी थॉट अगेन केम। बड़ा आसान काम है ये बचाना, ये लोग का वेस्टेज जो है बचाना बहुत आसान है। 1 दिन के लिए प्लम्बर को हायर कर लो और सारे दोस्तों के नल ठीक कर दो। That was the birth of my one-man NGO Drop Dead Foundation. प्लम्बर को लेकर घर घर जाना, नल ठीक करना, इसकी शुरुआत यहाँ से, इस आइडिया से हुई। तब मैं और मेरा प्लम्बर जाते थे और एक काम सिस्टम, वर्किंग सिस्टम वर्कआउट कर लिया हमने कि जाने से पहले जो हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी है उससे परमिशन ले लो। परमिशन दे तो फिर वहाँ पोस्टर लगा दो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ लिफ्ट के करीब हो या लिफ्ट नहीं हो तो वहीं दीवार पर लगा दो, ताकि आते जाते लोग देखते रहे। और वो पोस्टर क्या था, ये सिंपल जो टी शर्ट बना हुआ है मेरा, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड, सिंपल पोस्टर। अब
सेव एवरी ड्रॉप के जो टेक्स्ट जो है, फॉन्ट जो है, बड़े छोटे हैं, बड़े नहीं है। ड्रॉप डेड के फॉन्ट ऐसे है कि आने जाने वाले लोगों के माथे पर हफ्ते भर तक हैमर होते रहे। उसके बाद ये मंडे को पोस्टर लगाया, शनिचर के रोज हम हमारे पैम्पलेट हर घर में डाल देते वॉचमैन के जरिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये ड्रॉप डेड क्या है। कई लोग समझते कि ये ड्रॉप डेड जो है मुर्दे उठाने वाली कोई कंपनी है, कुछ अजीब और गरीब लोग सोचते रहते। तो इससे पता चलेगा भी ड्रॉप डेड फाउंडेशन है, ये लोग पानी बचाने का काम करते हैं, इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इनकी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, और ना कोई हमसे पैसा चाहते हैं, इट्स ए फ्री सर्विस। और संडे के दिन मैं प्लम्बर को लेकर पहुंच जाता था। तो मैंने एक बात बड़ी अजीब महसूस की, ये जो रिएक्शन जो मिले वहाँ से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो ये थे कि इतना सारा होने के बाद भी, सेक्रेटरी से परमिशन लेने के बाद, पोस्टर लगाने के बाद, पैम्पलेट भेजने के बाद, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है कि कुछ दरवाजे हमारे मुंह पर बंद हो जाते हैं। तो मुझे सोचना पड़ा इस पर। सोचने बैठा तो बात समझ में आ गई कि जब हम घर घर जाते हैं तो, और जब जिस घर में हम एंटर होना चाहते हैं वहाँ पहले घंटी बजाते हैं, तो मेरे आगे प्लम्बर रहता था, प्लम्बर के पीछे मैं रहता था। तो जो कोई दरवाज़ा खोलता था तो सबसे पहले उसके सामने प्लम्बर का चेहरा आता था, और प्लम्बर का चेहरा बिन लादेन जैसा था। नेचुरली बूढ़े लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे, नर्वस हो जाते थे। तब मैंने फिर एक आइडिया निकाला बैठ के, बड़ा अच्छा सिंपल सॉल्यूशन, कि एक सुंदर कन्या को साथ ले लो एज ए वॉलंटियर। अगर सुंदर लड़की साथ है तो मैं उसको आगे खड़ी कर देता हूँ, उसके पीछे मैं खड़ा रहता हूँ, मेरे पीछे प्लम्बर। अब वो घंटी बजाती है, दरवाज़ा खुलता है, सिर्फ खुलता ही नहीं, खुल जा सिम सिम, फौरन एंट्री सब हो जाती है। तो नॉर्मली मैं तो अंदर जाता नहीं, मैं तो बाहर ही बैठता हूँ सीढ़ियों पर। अंदर घर में प्लम्बर काम करता है, वो वॉलंटियर अंदर जाती है, इस तरह काम हमारा चलता है। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि एक बंदा जो मिला, वो उसको यही यकीन नहीं हो रहा था कि ये जनाब मुफ्त में क्यों काम कर रहे हैं। यानी हमारे में वो शक करने की जहनियत जो है ना, कि कोई काम कर रहा है तो ये मुफ्त में क्यों कर रहा है, इसका कोई तो एजेंडा है। तो मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, मुझे कहा आप अंदर आ जाइए, प्लम्बर को आधा घंटा लगने वाला है, तो बैठ के थोड़ा सा चैट कर लेते। तो मैंने कहा ठीक है, जाके बैठा, गपशप लड़ाना शुरू किया उसने, और फिर सवाल किया, क्या भाई साहब बताइए इसमें आपका एजेंडा क्या है। मैंने कहा भैया वो पैम्पलेट दिया, उसमें सब लिखा हुआ है कि हम किस लिए करते हैं। फिर 5-10 मिनट बातें हुई, फिर कहा नहीं नहीं भाई साहब कोई बात तो है, आप कुछ छिपा रहे हैं। मैंने कहा भाई छिपाने का है ही नहीं इसमें कुछ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई निशान नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का जैसे सैफरन कलर लगाया होता तो लोग कहते कि भैया ये तो भाजपा का प्रचार कर रहा है, कोई प्रचार किसी का नहीं है, सिंपल है। फिर भी उसके दिमाग में बात नहीं आई। प्लम्बर का काम खत्म हुआ और मैं जाने के लिए उठा तो उसने रोक दिया कि सर बता कर जाइए वरना मैं सो नहीं सकूंगा रात में। अब मुझे उसको जवाब देना पड़ा। वो मुसलमान था, मैं भी मुसलमान। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? उसने कहा हाँ पढ़ता हूँ, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, ये जवाब था उसका। मैंने कहा क्यों पढ़ते हैं? अब वो बौखला गया। आप ये किसी से भी पूछिए कि भैया मंदिर क्यों जाते हैं तो बौखला जाएंगे वो लोग, चर्च में क्यों जाते हैं बौखला जाएंगे, दे डोंट नो इट। फिर सोचकर इस बंदे ने बताया कि मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ ताकि खुदा खुश हो। मैंने कहा ये आपकी बंदगी है, ये मेरी बंदगी है, मेरी बंदगी से खुदा भी खुश होता है और बंदा भी खुश होता है।